Camera, action. So, good afternoon everyone. Today we have gathered for a training sessions by Mrs. Manisha Agarwal ma'am. She is going to take a seminar on the sessions cyber threats and security. So I welcome Manisha ma'am. Please come up and take this session. Thank you, Rajiv sir. Good afternoon, everyone. I welcome you all to my session. So the topic of today's session is cyber threats and security. So before starting my session, so everyone I think will be known these two terms, cyber threats and cyber security. Can anyone tell me what do you understand by the meaning of cyber threat? What do you understand by the term cyber threat? Anyone? आप साइबर थ्रेट से क्या समझते हैं? It is a kind of digital crime. It is a kind of digital crime. Yes, it is a kind of digital crime. Yes, सरस्वती मैम, साइबर सिक्योरिटी. मैम साइबर सिक्योरिटी मीन्स कि जो हम लोग डिजिटल में जितना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग का जितना ऐप है वो मैम एक दो नाम प्रोटेक्शन होता है. हाँ, जैसे बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर हो गया, हम लोग जितना भी ऐप में काम कर रहे हैं, जो हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं मैम बोलिए, जो भी हम लोग कंप्यूटर में हाँ, जितना भी काम कर जितने रहे भी हैं, हम online डाटा यूज़ कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी के लिए, जैसे अभी हम डिजिटल दुनिया में सभी कोई एक दूसरे का पासवर्ड हैक करके मतलब बहुत सारा क्राइम हो रहा है. yes, तो उस क्राइम को रोकने के लिए एक सिक्योरिटी जो है उसको बनाया गया जरूरत पड़ता है. तो उसको किस तरह से हम लोग को यूज़ करना है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, हम लोग उसका यूटिलाइज कहाँ है, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित अपने ऐप को रख सकते हैं. मैं वर्डिंग भूल रही हूँ लेकिन मैं आपको इसका डिटेल्स बता दूँ. कोई बात नहीं मैम. सरस्वती मैम हैज टोल्ड मी, शी इज सेइंग कि वर्डिंग में भूल गई हूँ, बट कोई बात नहीं. कभी कभी वर्ड से ज़्यादा आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो ज़रूरी होता है. एंड शी नोज व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. थैंक यू मैम फॉर योर आंसर. So now let's begin our session. First is cyber crime. Cyber threat, threatening or crime. It is a crime. ठीक है? Crime तो सभी को पता है. तो when we say about cyber crime, it is a term which refers to all the criminal activities where the computers are involved, where the networks are involved, where the crime is taking place with the help of computer or information technology or communication technology. Any crime which is committed using these technologies is termed as our cyber crime. So moving on to the next slide, it is cyber security. तो जहाँ crime होगा वहाँ security तो होना ही है, ठीक है. नॉर्मली जहाँ पर भी क्राइम रहता है वैसे ही सिक्योरिटी लॉज रहते हैं. सिमिलरली हेयर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो, if there is cyber crime then there must be cyber security. So cyber security already one of our faculty has explained. So once again I'm reading, cyber security means protecting your information, protecting your data, protecting your resources, your computers from unauthorized access. Unauthorized access का मतलब जिन्हें आप नहीं चाहते हैं अपना डेटा शेयर करना, वो भी आपका डेटा शेयर कर रहे हैं, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, किसी फ्रॉड में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो उन सब चीज़ों से अपने आप को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना इज़ नोन एज योर साइबर सिक्योरिटी. सो इफ़ साइबर सिक्योरिटी इज़ देयर देन देयर मस्ट बी सम साइबर लॉज. सो जैसे कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं. सिमिलरली हियर ऑल्सो इन ऑर्डर टू take control of the cyber crime, some laws have been reformed in each and every country, even in India also. In India, the cyber law is represented by Indian IT Act 2008. Okay, cyber laws are the term which is used to describe the legal issues which is related to use of the communication technology, your computers, information technology, or cyberspace or internet. Okay, तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए गए हैं ताकि साइबर क्राइम को हम लोग रोक सकें. रोकना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कम से कम उसको कम कर सकें. तो वैसे लॉज जितने भी बनाए गए हैं दैट टर्म्स आर नोन एज साइबर लॉ एंड इट इज़ अंडर द इंडियन
IT Act 2008. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी. हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? एनीवन? व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी? फर्स्ट इसमें क्राइम स्टार्ट हुआ. अब क्राइम जहाँ स्टार्ट होगा उस क्राइम को रोकने के लिए सिक्योरिटी का Very good. नीड होता है. Because there are lots of cyber crimes. Any other answer? What is the need of cyber security? Yes, ma'am. जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा वो सबको भी रोक सकते हैं सिक्योरिटी से. Yes. हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, माय लॉगिन क्रेडेंशियल्स, माय क्रेडिट कार्ड नंबर, माय डेबिट कार्ड नंबर, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम सिक्योर करके रख सकें, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है साइबर सिक्योरिटी. सो ह्यूज इंक्रीज इज इन द यूज ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन. वी ऑल आर यूजिंग द इंटरनेट, वी ऑल आर यूजिंग द स्मार्टफोन. आजकल कोई भी नहीं रह सकता. आपसे 2 दिन के लिए फ़ोन हटा लिया जाए, बेचैनी आ जाती है. 2 घंटे फ़ोन नहीं देखें, क्या आया होगा अपडेट, क्या चेक किए होंगे, नहीं देखा, हमने कैसा व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, क्या क्या नया टेक्नोलॉजी आया, व्हाट आर द अपडेट्स. तो हम एक बेचैनी सी हो जाती है. द स्मार्टफोन्स आर द नाउ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर लाइफ. ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिविजुअल शेयर द पर्सनल एंड द वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. वी आर शेयरिंग आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर. राइट नाउ वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस. सभी के पास, जहाँ पर पहले क्लास में एक भी स्टूडेंट के पास आपका नंबर नहीं होता था, आज पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में आपका नंबर पब्लिक हो गया हुआ. तो आपके नंबर को मिसयूज़ करके कोई दूसरा चीज़ नहीं हो या फिर कोई दूसरा फ्रॉड नहीं हो, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट. इफ़ यू आर डूइंग एन ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट तो हम वहाँ पे कार्ड नंबर डालते हैं, CVV डालते हैं, वी आर entering the amount, ठीक है. बट इफ़ दैट द डेटा वी आर शेयरिंग, इफ़ इट इज़ नॉट सिक्योर, मैंने तो कार्ड नंबर डाला, मैंने परचेज़ किया सिर्फ 500 का, अचानक आपके पास मोबाइल में मैसेज आता है कि 10,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से निकल गए. इफ़ योर डेटा इज़ नॉट सिक्योर्ड एनफ. Next is financial transaction take place on internet. As I have told, financial transaction means the online payment. Whatever online payment you are making, that comes. Security controls are never 100% and adequate. कितना भी सिक्योरिटी ले लीजिए, जैसे कि बोला जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो वैसे ही हमें कोशिश करना चाहिए अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, लास्ट में क्योर करना पड़े उससे बेटर है वी शुड टेक अटेम्प्ट टू प्रिवेंट आवरसेल्फ. ओके, एंड द लास्ट वन इज बैड गाइज आर ऑलवेज अहेड ऑफ गुड गाइज. ठीक है, क्लास में आप भी देखेंगे जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़े शांत रहते हैं, लेकिन जो चंचल हैं या फिर जो बदमाशी करते हैं वो उभर के आते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीथिंग. इन द लास्ट ऑलवेज द विनर इज द गुड गाय, लेकिन जो साल भर रहते हैं वो हमेशा बैड गाइज रहते हैं. सो these are the reasons what is why the need of security or cyber security is needed. Next is categories of cyber security. There are mainly 3 categories of cyber security. First is the crime against an individual person. Next, the crime against some kind of property, and the crime against organization or any society. Now first is the cyber crime against an individual person. Individual person, जब ऐसा कुछ क्राइम हो, जब आपको हार्म पहुँचे, बॉडीली हार्म या फिर आपका मेंटल हार्म या फिर कुछ भी आपसे रिलेटेड, जब एक इंडिविजुअल को हार्म पहुँचे तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन. फॉर एग्जांपल SMS स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग. किसी ने क्या किया, आपका ईमेल आईडी ले लिया और किसी आपके फ्रेंड को बहुत ऑप्शंस लैंग्वेज में कुछ लेटर लिख दिया. सो इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ एन इंडिविजुअल, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम बट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन. पूरी कम्युनिटी को नहीं इंक्लूड कर रहा है. SMS ले लिया, समवन इज ट्रैकिंग योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर से किसी और को सब इन सम ऑफेंस लैंग्वेज कुछ लिख के भेजता है, तो थर्ड पर्सन जिसको भेजता है उसको तो वही लगेगा कि नहीं मेरे फ्रेंड ने ऐसा लिख के भेजा है, पर एक्चुअल में वो होता नहीं है. ही इज़ a victim of SMS spoofing. So we will see one by one
what are the cybercrime, common cybercrime? First, I've already mentioned it is the email spoofing or SMS spoofing. इसमें या तो आपके email, जब भी आप email create करते हैं, we enter the basic details. तो यहाँ पे क्या करता है अटैकर या क्रिमिनल, क्या करता है आपके बेसिक डिटेल्स लेकर वो दूसरा ईमेल अकाउंट बनाएगा, या फिर उसी से दूसरे आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको दे यूज टू सेंड सम काइंड ऑफ malicious things. Okay, so if it is done, it is known as email spoofing. SMS spoofing same thing होता है, but instead of the email ID they take the मोबाइल नंबर. ओके, आपके मोबाइल नंबर से लगेगा कि दूसरा कोई भेज रहा है, बट लगेगा कि आप भेज रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कोई दूसरा ही भेजता है. ओके, नेक्स्ट इज द कार्डिंग. जब आपके कार्ड डिटेल्स यूज़ किए जाते हैं, आपका कार्ड डिटेल ले लिया, उससे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कर लिया. It can be for fun, it can be for their need of purchasing some kind of online products, it can be for monetary needs. Okay, so whenever means there is, it is defined as the illegal use of your card. It can be your credit card, it can be your debit card, any card. जब उससे कोई crime होता है, that is known as your carding, and the person who does it is known as a carder. नेक्स्ट इज डिफेमेशन. किसी दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे कर देना. ठीक है, किसी दूसरे के बारे में, जैसे हम बोलते हैं ना, अफवाह फैला लेना. यहाँ पर क्या होता है, किसी दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे कर देना या प्रेस्टीज को लोअर डाउन कर देना बाय मेकिंग, हाँ ये ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ हर, ऐसा कंडीशन हो बिकॉज ऑफ हर. तो किसी पे झूठा झूठा जब इल्ज़ाम लगा के हम लोग करते हैं, और वैसा एक्टिविटीज़ using some kind of criminal activities, when we do this we are defaming any individual. Next is cyber stalking. So it is the act of persistent and unwanted contact from someone online. आप सभी का Facebook अकाउंट रहता है, किसी ने आपको ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, you don't know that person, never accept those requests. ठीक है, क्योंकि अगर unknown रहता है, maximum chances are there they will be using your account for some malicious act. So whenever we should try not to not to entertain any kind of those requests. It may involve any number of incidents. It may आपके account को hack करके किसी को threat भेजा जा सकता है. Some kind of malicious activity can also be done. So we should also, yes, we can be a victim of cyber stalking. Next is cyberbullying. It is the common among teenagers. ठीक है, bully करना किसी को. And when we are doing the bullying over the internet, it is known as your cyberbullying. अब इसके after effects जो होते हैं, the victim पे इसके after effects जो होते हैं, वो बहुत ही dangerous हो सकते हैं. So we should not bully anyone, neither in person nor on cyber. Okay, cyberbullying, it is a kind of cyber harassment. Since it is, we are doing it online, so sometimes it is also referred to as online bullying. So in this, किसी के भी बारे में, it is very common among the teenagers, and here we harass any teenager, any person. ठीक है, and उनका हम प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट लोअर डाउन करते हैं, वो बहुत ही अपने आप को अकेले में रखेंगे, they cut off from the whole world. So this is known as your cyberbullying. Next is the second category, crime, cyber crimes against any property. So when the cybercrime against any property, these are the offences in which a person steal other property with the help of technological devices. कोई भी टेक्नोलॉजी का डिवाइस यूज़ करके आपकी किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाना. फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्टीलिंग या रॉबिंग होता है वंस प्रॉपर्टी, मैंने किसी का ये चुरा लिया इन रियल लाइफ, वैसे ही साइबर स्टीलिंग भी होता है. द सेम वे दे लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर, वो आपका ईमेल आईडी चुरा सकते हैं, उससे कुछ कर सकते हैं, फ़ोन नंबर चुरा सकते हैं, they can steal your credentials, login credentials, they can steal the credit card numbers. So all this comes under the cybercrime against property. Some of the common example is phishing, identity theft and account takeover. So we will see one by one what is phishing.
So it is also a type of cyber attack which is used to steal the login credentials. ठीक है, मैंने ये अकाउंट में आईडी डाला, पासवर्ड डाला और मैंने क्या किया, उसमें वहाँ पे ब्राउज़र में मैसेज आया पॉपअप मेनू टू वेदर यू वांट टू सेव द पासवर्ड, नेवर सेव द पासवर्ड। कभी भी आप सेव मत कीजिए, आपका पासवर्ड है, आपको याद है, जस्ट यू नीड टू टाइप वंस मोर, आप उसको सेव कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क पे आप कभी भी कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं हम ना, वी शुड नेवर सेव इट, क्योंकि दैट इज नॉट सेफ। ओके, it occurs when an attacker pretends to be a trusted identity and convince a victim to open an email account or text message। कभी कभी मैसेज आता है ना, ये आप करेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको इतना इनाम मिलेगा, ठीक है, या आपको आपका लॉटरी लगा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको लॉटरी मिल जाएगी, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं। हाँ, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये थोड़े नंबर्स डालने होंगे, OTP डालना होगा। So never do that. That comes under your phishing. Next is the identity theft. Identity theft नाम से ही समझ में आता है, किसी और का मुखौटा लगा देना, ठीक है। मुखौटा लगाने का मतलब दूसरों को आगे लगेगा कि हाँ हम हैं इन पर्सन, आई एम डूइंग और आई एम शेयरिंग माई इंफॉर्मेशन, बट एक्चुअली द थर्ड पर्सन इज डूइंग दैट इन प्लेस ऑफ यू, सो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। Next is account takeover. Account takeover is in the form of identity theft and fraud where a malicious third party successfully gains access to a user account credentials. किसी का login ID और पासवर्ड मुझे मिल गया, अच्छा वो इसको जानता है, ये तो मेरा दुश्मन है, चलो अब दुश्मनी निकालते हैं। ये होता है बहुत केस में, ये रियल लाइफ में। ये ऑनलाइन क्लासेस में शुरू में हो रहा था ना, कि जब हम लोग पासवर्ड दे रहे थे तो अदर बच्चे भी इन कर रहे थे, बाहर के बच्चे भी, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाना पड़ा था क्लासेस में। The person can change the mailing address of the account in order to perform the monetary transactions भी हो सकते हैं, और बाकी कोई भी मैसेज जो वो भेज रहा है वो तो भेज ही सकता है, and you are not able to see what kind of message, what kind of language that person is using. Next comes your farming. Farming is also a online crime. It is also similar to your phishing where the website traffic is manipulated. मुझे ये साइट में जाना है, आपको कुछ ट्रेडिंग, यू आर नाउ गोइंग टू एंटर सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर किया, बट टू वेबसाइट में मुझे ABC साइट पे जाना था, वहाँ पे मुझसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स माने गए, मैंने एंटर कर दिया, बट नाउ आई एम डायरेक्टेड टू सम अदर वेबसाइट। सो सम अदर वेबसाइट पे डायरेक्ट किया और वहाँ पे हैकर ने अपना काम कर लिया, उसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल गए, नाउ ही कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स। Next is cybercrime against an organization or society. So these are also the unlawful activities done with the intention of causing harm to the cyberspace, which in turn harm the people of the society. It is a planned and politically motivated attack for creating the disorders in the computer network. In this category, the criminal attack on government websites, military websites. कभी कभी होते हैं किसी organization का website आप देखेंगे कि क्रैश हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे होते हैं, मिलिट्री के स्पेशली ऐसे होते हैं वहाँ पे। तो व्हेन दिस टाइप ऑफ क्राइम्स आर डन अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, सो इट कम्स अंडर साइबर क्राइम्स अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। द फर्स्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द हैकिंग। हैक कर लिया, आपके सिस्टम को हैक कर लिया, अब जब तक आप उसको जो भी उसको हैक कर लिया, नाउ ही विल डिमांड सम मनी। जब तक आप नहीं देंगे उतना डिमांड, उसका मॉनिटरी नीड्स फुलफिल नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ओपन द वेबसाइट। दिस इज़ वन टाइप ऑफ हैकिंग। सेकेंड टाइप आप देख सकते हैं, वहाँ पे हैक कर लिया, योर सिक्योरिटी सिस्टम इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट थर्ड पर्सन। सो सिंस इफ़ इट इज़ योर वेबसाइट यू नीड द सिक्योरिटी कंट्रोल, तो आपको क्या करना है, हैकर को डिमांड पूरी करनी पड़ती है। सो वी शुड नॉट वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट इज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एवरीवन नोज अबाउट दिस। In simple terms, if I say what is child pornography, it is sexually abusing the child.
ऑनलाइन, ठीक है। स्पेशली दिस इज सीन इन केस ऑफ चाइल्ड, बट सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होता है, देयर आर मैनी अदर केसेस ऑल्सो। हियर हम क्या करते हैं, कुछ पिक्स ले लेंगे, कुछ वीडियोस बना लेंगे एंड उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। इफ़ यू डोंट डू दिस वी विल बी, इसको वायरल कर देंगे इंटरनेट पे, ये पिक्चर्स हम इंटरनेट पे डाल देंगे, एवरीवन विल बी एबल टू सी दैट। सो जनरली आवर चाइल्ड became a victim of this kind of crime. Next is cyber vandalism. Cyber vandalism means damage or destruction which takes place in the digital form. इसमें क्या होता है, it operate by defacing a website. अब क्या किया, malware, virus कुछ वेबसाइट में डाल दिया। अब whenever the person visits that वेबसाइट में इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं मिल रहा, हाँ साथ में 10 वायरस मेरे कंप्यूटर में आ जा रहे हैं। तो अच्छा, तो आपको जैसे सपोज आई एम यूजिंग, अच्छा मैंने कल विकीपीडिया खोला था लेकिन विकीपीडिया में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन मेरा कंप्यूटर अब स्लो डाउन हो गया, फाइल्स मुझे नहीं मिल रहा। यू हैव टोल्ड टू समवन एल्स, वो थर्ड पार्टी को बताएगा, थर्ड वन विल से टू फोर्थ वन। तो हम क्या करें, हम विकीपीडिया का कहीं ना कहीं क्या करें, उसका जो इमेज विकीपीडिया ने बनाया है वेबसाइट का, वी आर लोअरिंग डाउन द इमेज ऑफ दैट, ठीक है, किसी ना किसी वेबसाइट को स्पेशली। तो वैसे कर देना, व्हेन वी आर डिफेमिंग इट वी आर डूइंग द साइबर वेंडलिज्म। नेक्स्ट इज फॉर्जरी, एवरीवन नोज अबाउट दिस। फॉर्जरी क्या होता है, मेकिंग ऑफ एन इलीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज योर फॉर्जरी। कभी कभी होता है पासपोर्ट नहीं हो रहा, नकली पासपोर्ट बनवा लेते हैं। जब हम फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, इट कैन बी योर पासपोर्ट और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, मेरा तो यहाँ पे मार्कशीट नहीं बन रहा, चलो फेक मार्कशीट बन लेते हैं। एक्चुअली वी आर प्रमोटिंग फॉर्जरी, दीज आर द फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। सो वी शुड नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम। नेक्स्ट इज साइबर एक्सटॉर्शन। Cyber extortion, it occurs when cyber criminal threaten or disable the operations of a target business. बिजनेस पे ताला लग जाएगा, बिजनेस आपका पूरा ऑनलाइन मोड में ऑपरेट हो रहा था, लेकिन अब मुझे ये आपका बिजनेस, आपने जो वेबसाइट बनाया मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, मैंने उसको हैक कर लिया। अब जब तक आप मेरी डिमांड पूरी नहीं करेंगे हम आपको आगे करने नहीं देंगे। जब तक ऐसा होगा, दिस इज नोन एज योर साइबर एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट कम्स योर साइबर टेररिज्म। अब साइबर टेररिज्म क्या होता है, it is also an unlawful attack and threats to attack against the computer, against the network and information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objective. कुछ politics या political objective fulfill करने के लिए या social objective fulfill करने के लिए when we are doing some kind of cyber crime, it comes under your cyber terrorism. Next is cyber squatting. So cyber squatting also refers to the unauthorized registration and use of internet domain. मैंने कुछ बनाया था, मेरा डोमेन नेम था, उसका आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन अनऑथराइज हो गया और someone else is using my domain address. Generally domain address change नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर वैसा कुछ हो रहा है then it is also a type of cyber crime which is known as cyber squatting. Now if these are the cyber crime, who is responsible for all these crimes? We are responsible, because ultimately we are the humans which are using the internet, and among us only those individuals, there are some individuals which are doing these kind of crimes. So who are going to make a change? We are the only one who can change, who can make any kind of difference. If the change is to be made, ज़रूरी नहीं है change शुरू में ही बहुत बड़ा हो, the change can start always. If you want to change something, always the change should be first from within. हम कभी किसी को नहीं, अच्छा जैसे हम कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, हम बच्चे को बोलते हैं पढ़ने बैठो एंड उसी के सामने आप बैठकर मोबाइल फ़ोन चलाइए, टीवी चलाइए, वो बच्चा कभी पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ेगा। जब तक, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप पढ़ने बैठ जाइए साथ में, हाँ यू कैन डू वॉट एवर थिंग यू कैन लाइक, आप उसके साथ में बैठ सकते हैं, यू कैन डिवोट सम टाइम ऑफ योर्स टू योर चाइल्ड सो दैट, हाँ ठीक है पापा मेरे साथ बैठे हैं पढ़ाने, वो बच्चा पढ़ेगा।
एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, हफ्ता भर नहीं पढ़ेगा, बट वो जब देखेगा नो इट इज़ माई रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ माई फादर टू बी सीटेड विथ मी फॉर 2 आवर्स, क्या करेगा? अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर सकता, लास्ट में उसको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. सो सिमिलरली हेयर ऑल्सो if we are planning, okay, this should be changed, so start the change from within, from yourself. Next, so we have talked many things about the cyber crimes. There are many more crimes there are many different types of cyber crimes जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बताया, मैंने बहुत कम बताया. These are the categories, these I have only said or only here shown you the crimes जो कि बहुत कॉमन है. बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, बट वी शुड बी अवेयर. वाई वी शुड बी अवेयर? बिकॉज इफ दीज आर द क्राइम्स वी आर अननोन. अगर हमको पता ही नहीं होगा अच्छा ऐसा कुछ क्राइम होता भी है, वी कैन नॉट टेक द सेफ्टी मेजर्स. सो वी शुड बी नोन, वी शुड कीप अपडेटिंग आवरसेल्फ. ओके, so let's come to our security awareness. The first thing we can do in the security awareness or security measures is the password. Password कैसा होना चाहिए? Suppose आपने अपना email ID बनाया, email account बनाया, password कैसा होना चाहिए? बसंत सर? गुप्त होना चाहिए. कैसे It गुप्त should be होना strong, having alphanumeric codes. Alphanumeric codes होना चाहिए. Special characters उसमें. It should contain letters also, it should contain numbers also. Any other thing? Characters we can take in the small and Okay, the alphanumeric or the small and the combination of special small character and can be. uppercase letters. Any other thing about password? It should be confidential. Yes, it should be confidential. We should not share our So password that we with can anyone. It should be memorable. Yes, sir. It should be memorable. It should be 8 characters should be there, more than 8 characters to be More than 8 characters or minimum of 8 characters, क्योंकि minimum of 8 characters is needed. strong. The first thing about password, जैसे कि आप लोगों ने बताया, it should be alphanumeric. It should be a combination of letters and numbers. Okay, because if it is a combination of letters and numbers, तो जो भी एक क्राइम करते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पासवर्ड गेस करना. ठीक है, दोज पीपल हु आर नॉट यूजिंग द इंटरनेट या बहुत कम यूज़ करते हैं, हाँ हमारा आईडी बना दीजिए, हमारा अकाउंट खोल दीजिए, अकाउंट तो खोल दिया, पासवर्ड पूछा जाता है, हाँ मेरा नाम लिख दीजिए, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए, मेरे बच्चे का नाम लिख दीजिए. नेवर यूज़ दैट काइंड ऑफ पासवर्ड. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के विक्टिम बनते हैं ना, सबसे पहले आपका, अगर आपके बारे में कोई कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले आपके बारे में वो छानबीन करेगा, और आपके बारे में अगर छानबीन किया तो सबसे पहले वो ये बेसिक डिटेल्स निकालता है. आपका नाम क्या है, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है. सो वी शुड नेवर यूज़ दिस काइंड ऑफ पासवर्ड फॉर एनी ऑफ द वेबसाइट. The next thing about password is we should keep updating our password. जैसे कि मैंने एक पासवर्ड रख लिया, अब मैंने फेसबुक का भी वही रखा, जीमेल का भी वही रखा, रेडिफ मेल का भी वही रखा, कोई बात नहीं, एक ही याद करना पड़ेगा ना. वो आपने तो एक ही याद किया, पर बाकी आप अगर आपके साथ किसी भी टाइप का साइबर क्राइम होता है तो उसको एक पासवर्ड मिला, मतलब उसको सारे अकाउंट्स का सब चीज़ मिल गया, सारे डिटेल्स मिल गए. सो अगर आपके अकाउंट्स हैं फॉर डिफरेंट things, for different accounts, try to remember different passwords. ठीक है, अब पासवर्ड यू आर यूजिंग अ प्राइवेट कंप्यूटर, ठीक है, स्कूल का कंप्यूटर यूज़ करें या ऑफिस का कंप्यूटर यूज़ करें, पासवर्ड मुझे तो याद रहता नहीं, एक काम करता हूँ मैं लिख के रख देता हूँ, वो भी सामने डेस्कटॉप पे. मैक्सिमम पीपल डू दिस. याद नहीं रहता, फाइल कौन ढूंढेगा, डेस्कटॉप पे रख देते हैं. डेस्कटॉप पे रखेंगे, ऑब्वियस है आप तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आपके साथ ईमेल आईडी से भी क्राइम होता है. बिल्कुल. Yes, ईमेल्स so को फिर मैं फर्स्ट ही बताया था. अगर हम लोग ईमेल आईडी जैसे आप जैसे बोले पासवर्ड डिफरेंट टाइप का अलग अलग जगह पे रखेंगे तो सिक्योरिटी हम लोग का बना रहेगा. तो ईमेल आईडी भी हम लोग को हर जगह अलग अलग रखना चाहिए क्या? ईमेल आईडी तो मैम सेम होता ही नहीं. हाँ, तो ईमेल आईडी से जैसे क्राइम हो सकता है वैसा पॉसिबल है. हाँ बिल्कुल तो होता ही है. ईमेल आईडी चेंज करना चाहिए क्या? ईमेल आईडीज कैन नॉट बी सेम. सिर्फ पासवर्ड चेंज होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, वो एक नहीं रहेगा.
नहीं, हम बोल रहे हैं ईमेल आईडी अगर आपने जीमेल का बनाया, अब सपोज saraswatikumari@gmail.com, द सेम आईडी ज़रूरी नहीं है कि आपका फेसबुक या याहू में भी सेम वही आईडी, चीज पूछ रही हूँ। ईमेल आईडी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट हो सकता है ना। Yes, बस yes. ये क्लियर करना था। डिफरेंट होते हैं। मैंने बोला अगर आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ट्राई टू अपडेट योर पासवर्ड एवरी 3 मंथ और एवरी 6 मंथ, उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। और बाकी तो आप सबने बता ही दिया दैट इट शुड नॉट बी सिंपल, जैसे कि आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपके बेटे का नाम, आपकी वाइफ का नाम, आपकी स्पाउस का नाम। इट शुड इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस बोथ। इट शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली and do not write passwords, and if you are writing तो उस फाइल को आप हाइड करके रखिए, आप या फिर उसमें कुछ एक पासवर्ड अलग से एक लगा दीजिए so that no one can access it. Next is be extra careful of your password when you are using a shared machine. जैसे आप पब्लिक नेटवर्क में, मैंने बोला आप साइबर कैफे जा रहे हैं, वहाँ पे आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला एक पॉपअप, जैसे ही आप फेसबुक, आप कहीं पे भी आप नया पासवर्ड डालते हैं ना, हमेशा एक पॉपअप मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड, नेवर क्लिक ऑन येस, सेव नहीं करना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से मेहनत लगेगी डालने में, फिर से डालिए, सेव मत कीजिए, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग। एक बार और रिपीट कीजिए। जब भी आप, मैंने बोला whenever you are using a public network, मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है, आई नीड टू डू दिस थिंग और आई वांट टू शेयर दिस फाइल विद समवन एल्स, तो आप क्या करेंगे, स्मार्टफोन में करेंगे, स्मार्टफोन भी नहीं है, नहीं काम कर रहा है, नेट नहीं है, आप क्या करेंगे, साइबर कैफ़े जाएंगे, साइबर कैफ़े में गए, वहाँ पे अब फाइल शेयर करनी है, मतलब आपको लॉगिन आईडी तो आपका डालना ही पड़ेगा, पासवर्ड आपको डालना ही पड़ेगा। व्हेन यू आर एंटरिंग तो आपका वहाँ पे आएगा डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, मैंने बोला नेवर क्लिक ऑन येस, कभी भी येस नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज अवॉइड शेयरिंग योर पासवर्ड टू एनीवन, नॉट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, we should not share our password with anyone. So this is all about password. The next security awareness is the social media. Everyone is using the social media. Every one of us are having an account in social media. It can be a Facebook account, it can be a Twitter account, Instagram account and many other social media accounts. सभी का है ना? नहीं, अभी ट्विटर देख के याद आया आपका जो बोल रहे वाइडी बोल रहे, ये सर जो सोशल मीडिया का भेजे थे ना वीडियो, हम पढ़े थे इसमें। Okay. So, since the social media is now our integral part of our life, be sensitive in what you upload on social media. जब भी आप social media, आप social relations बनाने के लिए, it is not for to bring your life on the social media. आप कहाँ जा रहे हैं, okay, at 10 AM I am going here, after that I am going here. Never share your location. कहाँ जा रहे हैं, हाँ, क्या खा रहे हैं, each and every detail we share. Sometimes शाम को क्या बना, रात के खाने में क्या बना, सारा कुछ WhatsApp, this is the only mistake we are doing. That's why these crimes मतलब are. कि ऐसा भी होता है, मैं घूमने जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ ट्रेन में, उसका भी फोटो क्लिक करके यहाँ घर में आके चोरी हो गया, रनिंग स्टेटस ऐसा ऑफ भी हुआ है। होता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि वी विल नॉट बी एट होम, तो चोर को तो पता ही है कि घर में नहीं रहने वाला है, तो वो चोरी करने आएगा। नहीं, उसको तभी डालना है, ट्रेन में मैं सफर कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, चोर को पता चल गई। चोरी होना ही, ये होता है। So use security and the privacy options provided by the social media site. वहाँ पे privacy options रहते हैं, आपको सारे privacy options को करने चाहिए. There should be access control. Who can see my profile on social media? Who can send me request? Who can should be private. Yes, privacy control should be there. There is some kind of browser or machine mapping to your social media profile. कुछ ऐसे profiles होते हैं जिन्हें आप block कर सकते हैं directly. If you don't feel, हाँ किसी ने मुझे friend request भेजा, मैंने उसका profile visit किया और मुझे profile visit करने पे लगा कि that person is so much violent. लेकिन अभी प्रोफाइल हम लोग नहीं कर सकते, अभी तो लॉक सिस्टम हो गया है, हाँ। फेसबुक में टोटल लॉक सिस्टम आ चुका है। Lock system हो गया है। हाँ। तो ये सही हुआ कि हम लोग किसी का It is a kind of security. हाँ हाँ, किसी का भी, जैसे फेसबुक क्योंकि पहले क्या होता था मैम, आपका प्रोफाइल तो विजिट करता ही था, साथ में आपका फोटो वो
कॉपी कर सकता कॉपी था। कर सकता था, फ्रेंड सर्कल भी जैसे रहता है कि कौन कौन फ्रेंड है, क्या है। Now we can share only that information with stranger or with the unknown friends जितना हम शेयर करना चाहें। आप चाहते हैं अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स उसको दिखाना, वो अपने आप दिखाएंगे। वहाँ पे वो कुछ प्राइवेसी कंट्रोल्स हैं, we need to check that। और लॉक सिस्टम से क्या, हम कहीं भी जाके किसी का प्रोफाइल खोल के देख नहीं सकते जब तक वो मेरा फ्रेंड नहीं है। Yes। Next is keep your personal details personal details personal ही होनी चाहिए, वो पूरे सभी को नहीं बताना चाहिए। That is personal to you ना, why we will share it with the whole world। Next security awareness is our smart mobile phones। We cannot live, आजकल बोलते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं, साथ में हस्बैंड रहे ना रहे, फोन नहीं रहता है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक ही घर में अगर है तो 4 मेंबर पास फोन है, 4 मेंबर भले आपस में फोन पे बात करे ना करें, अभी तो- हैप्पी बर्थडे विश करे ना करें, बट अभी फेसबुक पे फैमिली In the same family, हाँ, in the yes। same house. नहीं, हैप्पी बर्थडे विश हस्बैंड को नहीं किया She's जाता, having लेकिन to फेसबुक पे फेसबुक पे पूरा हैप्पी बर्थडे डियर, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। फेसबुक पे पूरा रिश्ता है, व्हाट्सएप पे रिश्ता है। वी आर सोशल एनिमल्स, दैट्स व्हाई। अब हम लोग यहाँ फिजिकल रिलेशन से ज़्यादा हम लोग सोशल रिलेशंस पे कंसंट्रेट करते हैं। So do not jailbreak or root your smartphone। Now the smartphones are coming, the Android phones are coming with some security measures। क्या security measures है? पहले के स्मार्टफोन्स में क्या होता था ना कि आप वहाँ पे हम रूट जो होता है, जो आईफोन जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना, रूट होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हु इज़ हैविंग ऑल द कंट्रोल। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आई एम हैविंग द कंट्रोल, ओके मुझे इसको एक्सेस देना है, मुझे इसको एक्सेस नहीं देना, मुझे इसका करना है, मैं ये ऐप इंस्टॉल कर सकती हूँ, मैं ये ऐप डिलीट कर सकती हूँ। दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज़ देयर। लेकिन हमें जेल ब्रेक करना है या रूटेड नहीं करना है। अब स्मार्टफोन्स आते हैं, उसमें से आप कुछ जो प्री इंस्टॉल ऐप्स होते हैं, वी कैन नॉट रिमूव दोज प्री इंस्टॉल बिकॉज देयर इज सम एक्सेस कंट्रोल्स देयर। हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, एडमिनिस्ट्रेटर बन के अपना नुकसान ही कर रहे थे हम। तो वहाँ पे क्या किया एंड्रॉयड ने या जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया वहाँ ने उसने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ऐड कर दिए सो दैट वी कैन नॉट रूट बैक टू आवर स्मार्टफोन्स। ओके, नेक्स्ट इज कनेक्ट टू ओनली ऑथराइज वाईफाई एक्सेस। अरे चलो यहाँ जा रहे हैं, ट्रेन में करें, कोई बात नहीं, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, यूज़ कर लेते हैं। फ्री के वाईफाई के साथ आपको फ्री का बहुत सारा क्राइम भी मिलेगा, सो वी शुड नॉट यूज इट। नेक्स्ट इज यूज ऑटो लॉक फीचर्स। फॉर एग्जांपल मैम, फ्री का क्राइम कैसे मिलेगा? फ्री का क्राइम Rail आपका Connect। फ्री का वाईफाई यूज करके आप डाल रहे हैं, कहीं से भी आप स्टॉक हो सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग करके आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़ कर सकता है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लिया, आप कहीं पे सपोज किसी को पेमेंट करना था, मुझे किसी को अभी इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र करना है, आपने कर दिया, लेकिन आपका नंबर तो पता चल गया। उसके बाद वो आपके नंबर से कितना पैसा निकालेगा, पूरा अकाउंट खाली कर देगा। सो दिस टाइप ऑफ क्राइम कैन हैपन। सो we should only use the authorized Wi-Fi, use auto lock features। so जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा, मैं भूल गई मैंने फ़ोन रखा। now if my phone is not having the auto lock feature, कोई भी आके एक्सेस कर सकता है मेरा फ़ोन, and in each and every phone there is confidential data। हम क्रेडिट कार्ड का नंबर रखते हैं या कुछ पर्सनल अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, पर्सनल डेटा रखते हैं that anyone can access। so we should always try to use the auto lock feature। next is download the app from authorized app stores only। कभी कभी होता है ना, आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको यहाँ इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑफर्स, या इतना GB डेटा फ्री देंगे हम, वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज use privacy options provided by various mobile operating system। there are many kind of privacy options। जब आप स्मार्टफोन लेते हैं ना, when we are inserting our SIM, we should have a look at the privacy options offered by the smartphone। कभी कभी होता है ऑप्शन क्लिक नहीं होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाके प्राइवेसी ऑप्शन आप कितना शेयर करना चाहते हैं या कौन कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट एक्सेप्ट कॉल्स फ्रॉम वियर्ड नंबर्स और डू नॉट गिव अ कॉल बैक।
ठीक है, आपको कुछ आया नंबर किसका है तब तक फ़ोन कट गया, कोई बात नहीं, फ़ोन कट गया. इफ़ इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन विल अगेन कॉल यू बैक. लेकिन स्ट्रेंजर का है, मैं क्यों कॉल बैक करूँ? नेवर कॉल बैक. ओके, नेक्स्ट. Our next security concern is the desktop and the laptops. We all are using the desktop and the laptops. So it should have a proper antivirus installed. क्योंकि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट इज़ अ two-fold edge. Two-fold edge means there is good things plus there is bad things. तो आप तो अच्छे हैं, पर ज़रूरी नहीं इंटरनेट जब आप यूज़ कर रहे हैं या आपको जो फाइल्स भेज रहा है, द फाइल्स यू आर डाउनलोडिंग दैट आर ऑल्सो दैट मच ट्रस्टवर्दी. सो वी शुड हैव अ चेक, वी शुड इंश्योर वी शुड इंस्टॉल द एंटीवायरस इन आवर कंप्यूटर, इन आवर डेस्कटॉप, इन आवर लैपटॉप्स. सिर्फ इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, वी शुड कीप अपडेटिंग आवर एंटीवायरस. सो दैट व्हाई वी नीड टू अपडेट द एंटीवायरस. क्या होगा, अपडेट नहीं करेंगे क्या होगा, क्यों जरूरी है अपडेट? Yes. We should update antivirus. Security reason. Yes. There should be a new Because version should be every updated. day new viruses Yes. are being फाइल created. क्रैप्ट हो जाते हैं. Created. I have used the word created. Virus क्या है? Create. Nothing but the computer programs. कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं crack हमारे करने यूज़ के लिए, एंड कुछ कंप्यूटर्स प्रोग्राम बनाए जाते हैं फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पस ओनली. Those computer programs are only known as virus. So every day millions of viruses are being created और उसको इंटरनेट पे छोड़ दिया जाता है. तो वैसा कोई फाइल आपका डाउनलोड होके वायरस आपके सिस्टम को हार्म नहीं करे. So for that we should update our antivirus. Next is we should implement personal firewall. So I use the term firewall. Anyone can tell me what is firewall? Operating system. Firewall is not an operating system. A program which does not allow any other kind of information to be taken up. Other kind of information, sir? Like any kind of software or any kind of programs which are there. If we accept it, it may damage it. Firewall is a line between which does not allow that program to like merge or something with our programs and all. Okay. You are very close to the answer. Firewall is a barrier between the computer or the network and the internet or a public network. क्या है? इंटरनेट और हमारे बीच में एक बैरियर, एक दीवार का काम करता है. कैसी दीवार है? ऐसी दीवार है जो कि इनगोइंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक और द डेटा और इन्फॉर्मेशन, इट कीप एन आई ऑन दैट. अच्छा, ये डेटा जो है इट डज नॉट सीम्स टू बी फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी source, it will stop that. It will not allow it to enter in my computer or my computer network. So the main function of firewall is that it acts as a barrier and keep an eye on the ingoing and the outgoing traffic. Next is avoid installing the cracked softwares. कभी कभी होते हैं सॉफ्टवेयर के cracked versions मिलते हैं, वो नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए बिकॉज cracked version के साथ जनरली मैक्सिमम केसेस में वायरस रहते हैं. And if any kind of virus is there, the main feature of virus is that it keeps on replicating. अपने आप replicate होना शुरू हो जाता है. If it is replicating, it will fill up all the storage space. मेरे में दिखा रहा है 500 MB खाली है, लेकिन सेव करने जा रही है, मेरा फाइल सेव नहीं हो रहा क्योंकि पूरी जगह में तो वायरस फैला है. Okay. Next is keep your operating system files and the personal files in different HDD partitions. Factory restore is the best option to clean your system. अगर आपको लगता है your system is not working properly, you can reset the system to the factory setting. Factory setting क्या होता है? Default setting आपका जो भी आप जिस डेट में भी factory setting करते हैं, default setting तक आपका पहुंचा देगा. तो जितने भी फाइल्स उसके बाद आपने बनाए हैं वो सारे हट जाते हैं. So it is always a good practice to keep a backup of your important information. जो भी आपको लगता है this information or this file is needed, always have 2 to 3 copies of that. Have a backup of all those files. Next security or safety awareness is the internet. As I have already told, it is a two-edged sword. That means good thing is also there, bad thing is also there.
So we should be very smart when we are using the internet. We should never visit any untrusted websites. We should never use the referral link to visit any website. किसी वेबसाइट को विजिट कर दें, नीचे रेफरेंस लिंक रहता है, आपको उस वेबसाइट पे जाना है, जस्ट टाइप दैट यू आर इन द एक्चुअल एड्रेस. Next is use the browser add-ons to get protected from the known bad sites. Do not connect to unknown or unprotected Wi-Fi zones and ensure no one is shoulder surfing your keystrokes. Okay. Next is the encryption software. If we are in a need of sending some kind of important information to our friends, to our relatives, या फिर कुछ ऐसे confidential data है जो आपको भेजना है, we can encrypt it. Encryption means encrypt करना, मतलब सारिका मैम encrypt. ENCRYT. Encrypt का अगर मैं simple terms में बोलूँ to just change it in a different format so that it will not be easily accessible to the unauthorized person. Okay, so हम क्या करते हैं? The common form, I will give you the common example of encryption. Whenever you are entering the password, it is shown using the asterisk mark or the star marks आता है ना? किसी को नहीं पता चल रहा what she is entering, what password she is entering. वो नहीं पता चल रहा. अगर someone is having a eye on your screen, तो लॉगिन तो वो देख लेगा, ईमेल आईडी देख लेगा कि ओके ये ईमेल आईडी डाला, लेकिन पासवर्ड उसको दिखता नहीं है. पासवर्ड तो स्टार फॉर्म में आप whether you are pressing A, whether you are pressing I or whether you are pressing Z. So that is the common example of encrypt. So if you are sending some kind of sensitive information, then it should be in a encrypted form. Next is the biometrics. Biometrics is the safest means of transfer. Biometrics में क्या होता है? अपना फिजिकल एक्सपीरियंस, जैसे कि आपके स्मार्ट डिवाइसेस में भी होता है. आप जब लॉक करते हैं स्क्रीन, फेस रिकॉग्निशन होता है. थोड़ा भी चोट लग जाए, कट लग जाए, आपका मोबाइल फ़ोन आप ही को नहीं पहचानेगा, एक्सेस नहीं देता है, क्योंकि जितने डिटेल्स उसने अपने में एंटर कर रखे हैं, दैट इज़ नॉट मैचिंग विथ योर डिटेल्स. सो it is also a safest means of transferring the information or safest mode of providing the authorized access. So these are the different kind of security measures. So whatever we have studied today or whatever knowledge we have gained today, that is in the form of one video. So I would like to share this video. Have a look. Say hi to Alia. She loves playing games and watching cartoons on the internet. The internet is like a busy road with lots of traffic in all directions. This traffic is called data. The games, videos, cartoons and emails travel over the internet as data. While internet seems spectacular from outside, it has many unknowns inside. Use it very carefully to stay safe. Every day, Alia goes to school and enjoys the computer class like all other kids. She learns that the computer has something magical inside called the internet. It's the same thing on the new mobile phones too. The internet lets you do many other things, even make new friends. It can get infected with viruses which can harm your computer. So be very careful. Here's how you can stay safe and enjoy the internet. Before using the internet, always ask an adult if the computer has a firewall and antivirus working. Together, they protect your computer against many different kinds of viruses that attack our computer and steal our data. Remember, if you are using email, always keep your email password a secret. Make sure no one sees it, not even your friends. Let only your parents
parents know your password. Avoid saving your password on any computer or mobile phone. Email is great to keep in touch with friends, but remember to log out or shut down every time you're done. It's also important to know that you should not click any links or ads in your email or internet. Always ask an adult before doing so. These may contain viruses. With your regular studies, the internet is a great tool to learn and be smart. If you don't have a computer at home, cyber cafes can help you log on to the internet, where you can play games or watch videos. But here also, never click on links or any pop-ups. Always take the supervisor's help. Many movies are not made for children. Similarly, there's a lot of content on the internet that you should stay away from. Always alert your parents if you or your friends come across anything violent or for adults. You may also be using social networks like Facebook, Snapchat, Instagram and Musical.ly to chat with friends and make new ones. Good girl, Alia. That's the best way to stay safe. Also, you should not give your personal information on the internet when downloading a game. It can be stolen. You may find free Wi-Fi networks in public spaces to surf the internet for free. Never connect to them, as they're not safe. Social networks are like a playground. You have your friends in that space, and you may also make new ones. But not all want to be friends, even if they seem friendly. On any social network, never accept friend requests from anyone you don't know, and never share your details with anyone either. Details like your name and age, school and address, your current location, or anything else about your family. These strangers may look friendly and may talk nicely to you, but do not trust them immediately. Some strangers can follow you, bully you, and sometimes even hurt you and your family. And finally, if someone does bully you on the internet, don't worry. Inform your parents right away. Don't be scared, because it's not your fault. So, if you follow the rules like Alia, you too can have fun, communicate with friends, and learn on the internet. Just remember the safety tips and keep on playing and surfing. That's all. Thank you. I hope everyone enjoyed the session. Yes, And ma'am. have Very gained nice some kind of session. knowledge Very from nice this session. Very nice. Very nice. So, teachers, you have any query on regarding this session? Any questions? No. So I would like to call Sangeeta ma'am to please come on stage and tell few lines on today's session. Good afternoon, one and all. Thank you, Manisha ma'am, for sharing with us such a nice knowledge about the cyber crime. Because now in these days we are dealing with the digital lifestyle. So it is very much necessary that we should aware that what kind of crimes are happening in our daily life, and we should aware about this. So thank you once again ma'am on the behalf of all Siddharth family that you are sharing such a great topic, so that we can apply, implement all that application in our life, so that we can be safe and we can be aware that we should be not be the part of this crime. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you ma'am. So this session was really too informative. So thank you everyone to attend this session.